हेलो और नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे एंड यू आर वेलकम टू द हेल्थ एंड हीलिंग शो. दिस इज़ एपिसोड 3 एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन लाइव. आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज़ अ डिसीज़ जो यंग लोगों में देखी जाती है. रोमैटिक बीमारियों में से एक डिसीज़ है ये. आप में से जो लोग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जानते हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स. Some of you might be new to the idea. शायद you are wondering कि what is ankylosing spondylitis. So we have an expert with us today जो इसके बारे में बात करेंगे. For today's talk we have a very esteemed guest. I'm just going to share quickly. Our guest for today is Dr. none other than Dr. Shashank Akerkar sir. जो लोग मुंबई में है और रोमेटोलॉजी के किसी बीमारी से फाइट कर रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर they have heard about or met Dr. Akerkar. He is one of the leading figures in rheumatology in Maharashtra, in India, definitely. A little about sir before we invite him to join in. Dr. Akerkar is a physician, MD medicine trained from KM and then a fellow of American College of Rheumatology. He is a consultant rheumatologist at his clinic at center, which is the Mumbai Arthritis Clinic, and research center, which is at Bhandup, Mumbai. He's also a consultant rheumatologist at various other places including the Fortis Hospital Mumbai and Bethany Hospital Thane. सर के जो प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंड ही हैज बीन द रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इंक्लूडिंग द बेस्ट यंग साइंटिस्ट अवार्ड इन rheumatology. A very proud thing for us in India is sir has been a faculty at the American College of Rheumatology conference in 2015, and a very interesting topic which is also very close to his heart, the role that Twitter can play in rheumatology and creating awareness about that. Sir's area of interest are vast, but beyond the conventional rheumatology, sir ka interest has of course been in how to use social media better for rheumatology. I think this work of Rheumatology India is also largely inspired by sir's work, and he holds the Guinness World Record, which is for creating the largest human chain of a diagram of a bone, which was the sacroiliac joint, and that was done on the on the day of World Arthritis Day. So sir is a Guinness Book holder, record holder, and also he is the founder of organization which we'll hear about today, that is the Stand for AS, which is an organization जो बात करती है समाज में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, कैसे और ज़्यादा जानकारी हो इसके बारे में. इसके बारे में ज़्यादा सुनेंगे फ्रॉम सर हिमसेल्फ, राइट. सो यू आर ऑल दोज ऑफ यू आर ट्यून्ड इन फॉर द हेल्थ एंड हीलिंग शो, which is where we will be talking to rheumatology experts, and आज के हमारे special guest है Dr. Shashank Akerkar sir. I'm going to quickly invite sir to join in. In the meanwhile, those of you listening, please tell me if the audio quality is clear, if the video quality is clear, so that we are good to proceed. Please give me a moment till I invite sir to join in. Can someone please tell me if the audio quality is clear? Is the audio clear? Okay, thank you so much. Okay, so we are just waiting for sir to come in live. Just for note, हम कुछ समय पहले try कर रहे थे, but we got delayed because there seems to be some glitch happening where we were not able to run this. So I hope he's able to join this time. As a simple rule, those of you joining in, we are waiting for sir to join in. I have sent him the request, and जब आप के जो सवाल होंगे, आपको एक आइकन दिखेगा क्वेश्चन मार्क वाला. So please put your questions in there. We are again facing that same trouble of sir not being able to join. I'm getting a message that he's not able to join in live. Thank you for your patience, all of you. We are just trying to sort out this problem जो पहले भी हुआ when we tried doing this.
I think he should be able to join now. Yes. So we should be seeing Sir just in a moment. Hello, good Hello, evening. sir. Good evening, sir. माझा आवाज Absolutely. येतोय तुम्हाला, sir? Okay. So thank you for joining in, sir, and let's start this session. Again, for all of you, those of you just joining in, this is the Health and Healing Show, episode 3, जिसमें हम बात करेंगे about ankylosing spondylitis with an expert, a very esteemed senior rheumatologist from Mumbai, Dr. Shashank Akerkar, sir. So, sir, first of all, Thank you. welcome Thank to the you. show. I'm very happy to be a part of this program and happy to connect with all the warriors. Thank you so much. So you are the inspiration behind the social media. So thank you for being an inspiration for all of us, for all the rheumatologists. Thank you. So I'll start quickly with some of the questions. The first question, of course, जो मैंने बहुत सारे जो हमारे इससे पहले भी जो लोग आए हैं और मेरे जो सीनियर्स हैं उनको भी पूछा है, हाउ रूमेटोलॉजी, मतलब रूमेटोलॉजी इज नॉट अ फील्ड जो बहुत अभी तक तो पॉपुलर थी अमॉन्ग्स डॉक्टर्स आल्सो. सो जब आपने शुरुआत की इन योर करियर, हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम अ रूमेटोलॉजिस्ट? See, basically जब MD चालू किया तो I didn't even know about rheumatology. The way you said, डॉक्टर्स में भी इसका अवेयरनेस नहीं था और जब मैंने चालू किया तो ऑल द मोर रीजन कुछ भी नहीं था रूमेटोलॉजी का, कुछ अवेयरनेस था ही नहीं. लकीली क्या हुआ कि मेरी टीचर डॉक्टर बिचले मैडम, डॉक्टर लता बिचले, शी वॉज अ रूमेटोलॉजिस्ट. Yes. इसके लिए डे वन से जब से मैंने KEM एंटर किया MD मेडिसिन के लिए, तो डे वन से आई वॉज इन अ रूमेटोलॉजी यूनिट. तो डे इन एंड डे आउट अपार्ट फ्रॉम जो रूटीन पेशेंट्स देखते हैं MD मेडिसिन फिजिशियन लेवल पे, उसके साथ PG लेवल पे, उसके साथ आई गॉट टू सी आर्थराइटिस पेशेंट्स एंड दैट इज हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू रूमेटोलॉजी. ऐसे चालू हुआ ये टोटल सफर, वहां से चालू हुआ एक्चुअली. ऑल थैंक्स टू Right, बिचले right. मैडम. Yes, yes, I've heard, and I'm so proud of you. जब भी हम मिलते हैं तो no, I think you must have been her favorite student. I feel क्योंकि madam is always all praises about you. And a lot of people listening who are from Mumbai, I'm sure you are aware of the work of Dr. Lata Bichle, madam. She's a very senior rheumatologist and an inspiration for all of us. Sir, you have worked a lot in ankylosing spondylitis. Can you tell us, हमारे जो दर्शक हैं, जो लोग सुन रहे हैं, can you tell us ankylosing spondylitis exactly क्या है? और बहुत बार डाउट होता है कि क्या ये आरए है, तो ये आरए से अलग कैसे है? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक टाइप का गठिया है, आर्थराइटिस संधिवात है. इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, तो इनफैक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द जो भी आर्थराइटिस के टाइप्स है, मेजोरिटी, नॉट ऑल, मेजोरिटी उसमें होता क्या है, ये एक ऑटो इम्यून इलनेसिस है. ऑटो इम्यून यानी क्या होता है, अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही जॉइंट्स को फॉरेन समझ के अटैक करने लगती है. इसको किसी रूटीन एग्जांपल से कंपेयर करेंगे तो अपने ही एरिया के पुलिस अपने ही लोगों के घर में चोरी करने लग गए. तो ये ऐसा होता है, इम्यूनिटी को, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है. इन्फेक्शंस जो होते हैं, जो भी बुखार आता है, इन्फेक्शंस होते हैं, उसे अपनी इम्यूनिटी उसको फाइट करके इन्फेक्शन को बॉडी से क्लियर करती है. लेकिन आर्थराइटिस में, जिसे हम लोग टेक्निकली इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें होता क्या है, यही इम्यूनिटी अपने जॉइंट्स को फॉरेन समझ के अटैक करने लगती है. एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसे ही एक टाइप का ऑटोइम्यून आर्थराइटिस है. इसमें होता क्या है, तो इसमें इम्यूनिटी कौन से पर्टिकुलर जॉइंट्स को अटैक करती है, तो पीठ कमर के जो जॉइंट्स है उन्हें अटैक करती है. बटक्स के नीचे सेक्रोइलेक जॉइंट करके होता है, जिसे हम लोग सीट की एरिया बोलते हैं, उसके नीचे सेक्रोइलेक जॉइंट करके होता है, उससे अटैक होता है. जो मणके के वर्टिब्रे के जॉइंट्स है, उन्हें उनके ऊपर अटैक होता है. तो दर्द कभी बटक्स में होता है, सीट की एरिया में, कभी गर्दन में होता है, कभी पीठ कमर में होता है, अलग अलग जगहों पे होता है, क्योंकि ये स्पाइन पूरा वर्टिब्रे ऊपर से नीचे तक है, गर्दन से लेके नीचे तक. काफी बार पेशेंट्स यही सोचते रहते हैं कि ऐसा कैसा है, आज इधर दर्द है, आजकल उधर दर्द है, परसों गर्दन में है, दूसरे और कोई है. मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये पीठ, गर्दन, कमर और बटक्स, ये एरिया में रहता है. किसी किसी में हिप्स में भी हो सकता है,
किसी किसी में हाथ के जॉइंट्स, घुटना, टखना, नी, इन जॉइंट्स में भी हो सकता है। तो इन जॉइंट पे अटैक होता है तो होता क्या है, इनमें सूजन आ जाती है और सूजन के वजह से पेन होता है। अगर ये बाहर के जॉइंट्स है, जैसे हाथ, घुटना, टखना, ये जॉइंट्स में है तो ये बाहर से दिखने में आता है। किसी को भी दर्द हुआ तो सामने दिखता है कि सूजन दिख रही है सामने से। अगर ये सेक्रोइलेक जॉइंट में होता है या वर्टिब्रे के जॉइंट्स में होता है तो बाहर दिखता नहीं है, अंदर से दर्द तो होते रहता है। तो इसके लिए काफी बार ऐसे होता है, लोगों को, जो करीबी लोग भी है उनको भी कभी कभी लगता है कि शक होने लगता है कि ये सच में बोल रहा है या ऐसे ही कुछ नाटक कर रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है इसको, क्या दर्द तो होते रहता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता है, दिखने में तो हट्टा कट्टा दिखता है, दिन भर में अच्छा काम कर लेता है, रात में अचानक बोलने लगता है दर्द हो रहा है, सुबह उठेंगे तो दर्द हो रहा है। तो ये जेन्युइनली ये इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक टाइप का ऑटोइम्यून आर्थराइटिस है। इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलरली ये हाथ के जॉइंट्स, शोल्डर, नी, एंकल, फुट, ये जॉइंट्स में तकलीफ होती है। इसमें बहुत रेयरली स्पाइन को इन्वॉल्व होता है, यानी गर्दन, कमर, पीठ, पर्टिकुलरली जो सीट का एरिया है, सेक्रोइलिक जॉइंट्स, ये इतने कॉमनली रूमेटॉइड में इन्वॉल्व नहीं होते। तो रूमेटॉइड और एंकिलोजिंग में डिफरेंस क्या है, तो रूमेटॉइड में हाथ, पंजे, पैर, शोल्डर, इन जॉइंट में पेन, दर्द, सूजन होती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पर्टिकुलरली बैक और बटक्स एरिया में पेन स्वेलिंग होती है और दर्द होता है। राइट, दैट्स सो वेल सेड। सो जो दर्शक जो सुन रहे हैं हमें राइट नाउ, जो पेशेंट्स है या रिलेटिव्स, आई थिंक दो चीजें मैं जरूर कहूंगा, सर ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया। बहुत बार लोगों को शक होता है कि क्या ये सच में हो रहा है, बिकॉज बाहर से नहीं दिख रहा। एंड द सेकेंड पार्ट इज डिफरेंस, कि जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपके रोमेटोलॉजिस्ट डायग्नोस करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट कौन सी है। सो क्विक क्वेश्चन सर, ये बहुत बार पेशेंट्स ही हमें पूछते हैं, क्या टेस्ट के हिसाब से ये डायग्नोसिस होता है? फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है, रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव है, या कोई ब्लड टेस्ट है, इसके हिसाब से डायग्नोसिस होता है या क्लिनिकली जज करते हैं? हाउ डू यू डायग्नोस दिस? रूमेटोलॉजी एक पर्टिकुलरली बहुत ऐसा फील्ड है कि सिर्फ रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं होता है। इनफैक्ट काफी बार पेशेंट्स आते हैं कंसल्टिंग के लिए और मुझे क्या होता है ये भी नहीं बोलते, सीधा सर ये देखो एएनए पॉजिटिव आया, देखो सर आरए टेस्ट पॉजिटिव आया। तो फ्रैंकली रूमेटोलॉजी में ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले राइट। आपका क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो जानना बहुत जरूरी होता है। रिपोर्ट्स तो ऑब्वियसली देखे जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट्स का वैल्यू सेकंड रहेगा। पहले हमेशा क्या होता है आपको वो देखना जरूरी है। ऐसा क्यों है, तो देखो जैसे डॉक्टर सुशांत ने अभी बात कही रूमेटॉइड फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर का अगर देखेंगे तो ये फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है। फुल प्रूफ टेस्ट का क्या मतलब है कि मैं अगर शादी में जाता हूँ, कोई ऐसे ही 100 लोग आए हैं शादी में, किसी को कुछ तकलीफ नहीं है, मैंने ऐसे ही सबका ब्लड कलेक्ट कर लिया और उनके सबके रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट कर लिए, तो उसमें से ऑलमोस्ट 10 to 15% लोगों का ब्लड रूमेटॉइड फैक्टर के लिए पॉजिटिव आएगा। ये फॉल्स पॉजिटिव, इसे फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है बेसिकली। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लैब खराब है, लैब की वजह से पॉजिटिव आया, नहीं। ये उस टेस्ट का इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि ये 15% लोगों में फॉल्स पॉजिटिव आती है। और जिससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मेरे पास 100 पेशेंट्स है मेरे रूमेटॉइड के, सबकी मैंने टेस्ट कर ली रूमेटॉइड फैक्टर, तो उसमें से 35% की नेगेटिव भी आएगी। इंडियन जो डेटा इंडियन पेशेंट्स के है, तो ऑलमोस्ट 35% में नेगेटिव भी आती है, जिसे फॉल्स नेगेटिव कहा जाता है। और वो आर्थराइटिस रूमेटॉइड ही है, लेकिन उसे सीरो नेगेटिव आरए कहा जाता है। तो सिर्फ टेस्ट के ऊपर डायग्नोसिस नहीं होता है, पहले आपको क्या है वो देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद टेस्ट डेफिनेटली होता है। सेम वे रूमेटॉइड फैक्टर जैसे HLA-B27 करके एक जीन होता है, जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ऑलमोस्ट 90% लोगों में पॉजिटिव होता है। जैसे मैंने वापस कहा, देखो 90%, तो अगर HLA-B27 नेगेटिव है, उसका ये मतलब नहीं है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, क्योंकि 10% में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होते हुए भी HLA-B27 नेगेटिव आ सकता है। और इंडिया में ऑलमोस्ट 100 लोगों में से 6% लोगों में ये जीन आता है। तो 6% इंडिया के लोग हैं वो HLA-B27 जीन कैरी करते हैं, उनकी HLA-B27 जीन पॉजिटिव आती है। लेकिन इंडिया में सिर्फ 0.5 to 1% लोगों को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो बाकी के 5% है उनकी टेस्ट तो पॉजिटिव आती रहेगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उन्हें एंकिलोजिंग है। समझो कोई है जिसका HLA-B27 जीन उसका है, कैरी कर रहा है, और उसे स्लिप डिस्क हो गई, तो उसे भी बैकएक होगा,
तो सिर्फ बैकएक है करके मैंने HLA-B27 टेस्ट करा लिया और पॉजिटिव है और बोल दिया एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो ये गलत बात होती है। तो इसके लिए पहले आपको क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। वहां पे ही बेसिक डायग्नोसिस होता है, और जो टेस्ट है वो एडिशनल है कंफर्मेशन के लिए कि सही है, सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे। राइट। सो ये HLA-B27 सर, जस्ट फॉर क्लैरिटी, हमने कहा कि जेनेटिक टेस्ट है। बहुत बार जब हम ये पेशेंट्स को बताते हैं तो पेशेंट्स का सवाल होता है, तो क्या फैमिली में सबका टेस्ट करा ले, बच्चों का टेस्ट कर ले, भाई बहनों का टेस्ट कर ले, व्हाट डू यू रिकमेंड? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टू सम एक्सटेंट जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक से ज्यादा मैं बोलूंगा कि फैमिली में रन होता है। तो अगर फादर को है तो बेटे को होना जरूरी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। हाँ, रिस्क है। तो जिसे तकलीफ है उसका टेस्ट किया वो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का टेस्ट करके अचीव क्या करेंगे? अगर समझो उनको टेस्ट पॉजिटिव भी आता है, अगर उनको कुछ तकलीफ है ही नहीं, तो उनका करके कुछ अचीव तो नहीं होने वाला है। जैसे समझो किसी को एंकिलोजिंग है, उसके बच्चे को कुछ भी तकलीफ नहीं है आज के दिन में, तो उसका HLA-B27 करके फ्रैंकली क्या अचीव होगा? बिना वजह का टेंशन पाल के रखोगे, करने वाले तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे तकलीफ ही नहीं है तो करना क्या है उसका। तो इसके लिए जिसे तकलीफ है उसका डेफिनेटली HLA-B27 किया जा सकता है, लेकिन उसके रिलेटिव्स जिनको कुछ भी तकलीफ नहीं है उनका करने का फ्रैंकली कोई नेसेसरी नहीं है। इवन बच्चों का काफी बार लोग मुझे पूछते, पेशेंट पूछते, सर मेरे बच्चे का HLA-B27 कराऊं क्या? तो मेरा आंसर यही रहेगा, उनका करके सिर्फ फ्रैंकली लाइफ लॉन्ग एक टेंशन हमेशा कैरी करोगे कि उसका भी पॉजिटिव है, कुछ होगा तो नहीं, अचीव कुछ नहीं होगा। तो अगर तकलीफ नहीं है तो उसको करने का एब्सोल्युटली जरूरत नहीं है। Absolutely. And जैसे आपने कहा सर, there are many people in India जो HLA-B27 पॉजिटिव होंगे, but there are very few जिनको ankylosing spondylitis है। तो if you look at that ratio, there are many more who are positive, very few actually have Absolutely, well said. एक सर आपने राइट सर, एक सर आपने कहा था, जस्ट टेक दैट पॉइंट एंड आस्क यू, जैसे बहुत लोगों को पता होता है हमें डिस्क प्रोलैप्स हुई है या कमर में गैप कम हो गई है, उन्हें भी बैकएक होगा। अब ऐसे भी लोग हमें अभी सुन रहे होंगे या आगे जाके इस वीडियो को सुनेंगे जिन्हें बैकएक्स कभी ना कभी हो चुकी है। तो क्या नॉर्मल बैकएक या फिर नॉर्मल से ज्यादा नॉन एंगस्पॉन बैकएक जिन्हें लंबर स्पॉन्डिलोसिस या कुछ और हुआ है, और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसे हम रूमेटोलॉजिस्ट कैसे डिफरेंशिएट करते हैं क्लिनिकली? आपने कहा कि हम पूछें तो क्या क्या साइंस होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं इसके बीच में? वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबको आपको सुनना चाहिए। क्योंकि बैकएक एक चीज है जो बहुत कॉमन है, मुझे भी हुई है, सुशांत को भी कभी हो गई रहेगी, और हर एक को होती है कभी ना कभी। तो बैकएक हर एक को, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बैकएक तो होगा ही। तो रूटीन बैकएक से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बैकएक कैसे अलग होता है? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बैकएक को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में इन्फ्लेमेटरी बैकएक बोलते हैं। इसे क्यों इन्फ्लेमेटरी बैकएक कहा जाता है? तो इस बैकएक में होता क्या है, जैसे मैंने पहले बोला आपको, इसमें अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही जॉइंट्स को अटैक करती है, वहां पे स्वेलिंग, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में इन्फ्लेमेशन कहा जाता है, उसके वजह से ये बैकएक होता है। सो इसके लिए इसे इन्फ्लेमेटरी बैकएक कहा जाता है। इसकी खासियत क्या है? अगर किसी को स्लिप डिस्क है, मसल स्प्रेन है, तो मूवमेंट जब करेंगे, चलना फिरना होगा, वजन उठाना, काम करना, तब ये पेन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे स्लिप डिस्क है। इन्फ्लेमेटरी बैकएक में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। जब आप रेस्ट करते हो, बहुत देर बैठे रहते हो, बहुत देर सो जाते हो, सुबह उठते हो, रेस्ट के बाद ये पेन बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन है। और जब आप मूवमेंट चालू हो जाती है, काम चालू होता है, मूवमेंट चालू होती है, तब ये पेन कम हो जाता है। तो अगर ऐसा पेन आपको है जो मॉर्निंग में उठने में बहुत ज्यादा हो, कि सुबह उठने को भी तकलीफ होती है, इस साइड में बेड में पकड़ना पड़ता है, उस साइड पकड़ना पड़ता है, उठने के लिए 2-3 मिनट या किसी किसी को 10 मिनट भी लग जाते हैं। सुबह उठने के बाद नीचे कुछ गिरा, उठा भी नहीं सकते, घर में किसी को बोलना पड़ता है, भाई मुझे ये गिर गया, वो उठा के दो। और जैसे दिन बीतता है वैसे ये पेन कम होते जाता है। अगर ऐसा पेन है तो ये इन्फ्लेमेटरी बैकएक का बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, और आपको रूमेटोलॉजिस्ट को इसमें जरूर मिलना चाहिए। ये एक। सेकंड पेन, रात में जो पेन होता है, एक बार सो गए, सोने में बहुत से बार कुछ भी दिक्कत नहीं रहती है, सो जाते हो, रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे इतना दर्द होता है कि लिटरली उठ के बैठना पड़ता है। रात को नींद में करवट बदलते, वो भी ध्यान में आ जाती है, क्योंकि दर्द होता है उसमें,
कितने सारे लोग हैं वो दर्द की वजह से ऐसे करते हैं कि एक करवट पे सो गए तो वैसे ही सो गए, सुबह भी वैसे ही उठेंगे, बिल्कुल ही करवट नहीं चेंज करेंगे क्योंकि उसमें पेन होता है। तो अगर रात को करवट बदलते समय आपको पेन हो रहा है, सुबह उठते टाइम दिक्कत हो रही है, या सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे दर्द इतना भयानक होता है कि उठ के बैठना पड़ता है। लिटरली कुछ लोग रहते हैं जो फिर चेयर में सो जाते हैं क्योंकि उनको लेट ही नहीं सकते, इस टाइप का पेन। और तीसरा और एक यूनिक पेन है जो रिप केज एरिया में, फसली जो बोलते हैं हम लोग, जो लंग के नीचे का एज जो देखेंगे फसली की पेन, वहां पे पेन है। कुछ लोग रहते कहीं और कुछ भी नहीं, सिर्फ पसलियों में पेन होता है। छींकने में इतनी तकलीफ होती है कि छींक लिटरली बीच में रुकने पड़ती है कि छींक भी नहीं सकते। लंबा सांस लेते हैं, खांसी करते हैं, तब पेन होता है, छींक में पेन होता है। वैसे टाइप के जो पेन्स है उसके लिए रूमेटोलॉजिस्ट को आपको जरूर मिलना चाहिए। ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होने का बहुत हाई चांस है। और समझो इसके साथ आपको कोई जॉइंट में भी पेन है, नी में, एंकल में, फुट में, हील में पेन है, एंकल के पीछे, टखने के पीछे जो एरिया होती है वहां पे पेन स्वेलिंग है, या कभी भी आपकी आंख लाल हुई है, आंखों में दर्द हुआ है ऐसा, या आपको चमड़ी में कुछ भी अगर इचिंग वाले लीजन्स है, ऐसे कुछ है, तो आपको जरूर रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए ताकि आपका सही सही डायग्नोसिस हो सके। Right. So that's a very important point again. सर ने जो कहा, आई जस्ट क्विकली रिकैप दैट इन टू सिंपल आइडियाज. अगर आपका बैकएक एट रेस्ट है, सुबह उठने पे है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, मीट अ रूमेटोलॉजिस्ट. अगर आपका बैकएक सुबह उठने पे नहीं, स्टिफनेस नहीं, आपके किसी और जोड़ में तकलीफ नहीं, तो शायद ऑर्थोपेडिशन आपके प्राइमरी डॉक्टर हैं. जो मैकेनिकल बैकएक्स है, जो सर ने कहा जो बाकी टाइम होंगे, झुकने पे होंगे, वो मैकेनिकल बैकएक्स ऑर्थोपेडिशन का डोमेन है. और जहां पर आपको इन्फ्लेमेटरी बैकएक्स है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, हील पेन है, रिप पेन है, रेडनेस ऑफ आईज है, सोराइसिस है, जो सर ने डिस्क्राइब किया, देन यू शुड मीट अ रूमेटोलॉजिस्ट. राइट. सो सर ये अभी इफ यू हैव डायग्नोस्ड दिस, क्या इसमें रेडियोलॉजी मतलब एक्सरे एमआरआई का भी रोल है, या डू वी स्टार्ट ट्रीटमेंट डायरेक्टली, और अगर करे तो उससे हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प? एक तो आपके जो सिम्टम्स है, जो टाइप का पेन है, अभी मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया, उसी से अच्छी खासी आइडिया रूमेटोलॉजिस्ट कैसे डायग्नोस करते हैं। जब हमारे पेशेंट्स आते हैं बैकएक बोलते हैं, तो एग्जैक्टली जो मैंने अभी बातें कही वही हम लोग भी असेस करते हैं कि ये बैकएक मैकेनिकल है, इन्फ्लेमेटरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली एक्सरे हेल्प करता है। अगर मैकेनिकल बैकएक है, मैकेनिकल बैकएक यानी जो आपने सुना रहेगा स्पॉन्डिलिसिस है, कमर में गद्दी खसक गई है, सायाटिका है, नस दब रही है, तो ये पेन्स एक उनकी क्वालिटी पेन की अलग रहती है उससे, और सेकंड एक्सरे में डायग्नोस होते हैं। तो एक्सरे में एक और तो कुछ नहीं है ना, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस छोड़कर, वो डेफिनेटली क्लियर हो जाता है। जैसे गैप कम हुई है, स्पॉन्डिलिसिस है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस करके भी एक चीज होती है जिसमें स्पाइन के जो वर्टिब्रे है वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये सब चीज तो क्लियर कट एक्सरे में दिखती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो है, अगर बीमारी काफी टाइम से चल रही है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो काफी बार ये बीमारी स्ट्रेट अवे एक्सरे पे ही डायग्नोस हो जाती है और कुछ नहीं करना पड़ता है। जिसे इसमें एक्सरे में होता क्या है, जो मैंने पहले बोला था आपको, इसमें पहले जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, और अगर ये बहुत सालों तक चलता रहा तो यहाँ पे हड्डी में, जॉइंट्स के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। और ये डिपॉजिटेड जो कैल्शियम है, और जो सेक्रोइलियक जॉइंट में इन्फ्लेमेशन की वजह से कुछ चीजें होती है, वो एक्सरे में क्लियर कट दिख जाती है। इसको बैम्बू स्पाइन भी कहा जाता है। तो अगर अगर आपका एंकिलोजिंग बहुत सारे टाइम का है, बहुत ड्यूरेशन का है, तो एक्सरे पे ही काफी बार इसका डायग्नोसिस हो जाता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर आपका एंकिलोजिंग शॉर्ट ड्यूरेशन का है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो काफी बार एक्सरे एब्सोल्युटली नॉर्मल आता है, क्योंकि एक्सरे में चीजें डेवलप होने के लिए काफी टाइम लगता है। तो अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बैकएक जो मैंने बोला वैसा टाइप का बैकएक है, आपने किसी ने बोला एक्सरे करो, एक्सरे किया, एक्सरे नॉर्मल आ गया, तो ये डेड एंड नहीं है, यहाँ पे नहीं रुकना है, रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर मिलना है। ये स्टेज में एमआरआई में क्लियर कट डायग्नोसिस हो सकता है। एमआरआई में दिखता क्या है, तो एमआरआई में जो मैंने बोला, जो सेक्रोइलियक जॉइंट्स या वर्टिब्रे के जॉइंट्स में, इसमें क्लियर कट सूजन दिखाई देती है, जिसे बोन मैरो एडिमा बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। एमआरआई के रिपोर्ट में लिखा होता है अक्यूट सेक्रोइलाइटिस या क्रोनिक सेक्रोइलाइटिस, ये सब जो चीजें हैं ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दर्शाती है। सो एक्सरे
एक्सरे में नहीं आता है तो एमआरआई, जिससे डायग्नोसिस डेफिनेटली 100% हो सकता है एंकिलोजिंग का। Right. जो हमें डॉक्टर्स अभी सुन रहे हैं, बिकॉज आई नो रुमेटोलॉजी इंडिया को काफी डॉक्टर्स भी फॉलो करते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट। अगर आप और डॉक्टर को हमें सुन रहे हो कि अगर आपके पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बैकएक है, प्लीज स्क्रीन द सैक्रोइलियक जॉइंट। जैसे सर ने कहा सैक्रोइलियक जॉइंट में फाइंडिंग्स है, एलएस स्पाइन में फाइंडिंग शायद नहीं होंगे अगर आइंसपॉन्ड का पेशेंट है अर्ली स्टेजेस में। अगर आप एमआरआई भी करें तो इंक्लूड द सैक्रोइलियक जॉइंट। एंड ऑफ कोर्स अगर मैकेनिकल पेन्स है देन यू आर ओके डूइंग द लंबोसैक्रल एरिया स्क्रीनिंग जो किया जाता है, एलएस स्पाइन का जो किया जाता है। I think this is especially for the doctors who are listening, and I know a lot of doctors. Maybe I can see there are doctors listening live right now. So a message for them. Sir, can you tell us about the treatment? Abhi angstpond, once it is diagnosed, most of them are young people. ये young लड़के हैं. It's predominantly in boys. एंड यंग एज, बहुत बार जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वी ऑल सी 15 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स वहां ऑनसेट देखा जा रहा है। दे आर पूरा करियर आगे है। एंड एक चीज जो मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ, शायद यू विल एग्री, कि व्हेन अ पेशेंट ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉक्स इनटू द रूम, यू कैन मेक आउट कि बहुत लोगों ने डराया है उनको कि तुम कभी ठीक नहीं होने वाले हो, पूरा स्पाइन बैकू जैसा हो जाएगा, झुक नहीं पाओगे, और बहुत डर रहता है। सो is there treatment? I mean, of course we know there is treatment. I would like to hear from you, what is that treatment? How does this treatment work for ankylosing spondylitis? सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर यानी फुल फ्लेज ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और ये डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। मार्क माय वर्ड्स, दिस इज द फैक्ट। जैसा डॉक्टर सुशांत ने बोला, दिस इज वेरी कॉमन। जब भी पेशेंट आता है, आइदर उसे और किसी ने बोला रहता है, एंड समहाउ अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने भी कभी कभी बोला रहता है कि इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, ये अच्छा नहीं होता है, एक्सरसाइज करो और भूल जाओ, जो है वो चलने दो। सो दिस इज अ फैक्टर, ये है। दैट इज बिकॉज इसके रिलेटेड अवेयरनेस बहुत कम है अभी आज के दिन में भी, एज कम्पेयर टू इवन अदर टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जितना अवेयरनेस है, समहाउ उतना एंकिलोजिंग का नहीं है, सैडली। लेकिन ये है, ट्रीटमेंट वाइज मे बी अगर मैं बोलूँ तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड इन अ बिग 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 वे। जब मैं रेसिडेंट था, जो स्टार्टिंग में बात हुई रूमेटोलॉजी में कैसे आया, जब मैं रेसिडेंट में था तो फ्रैंकली पेन किलर्स और एक सल्फासालिजिन गोली छोड़कर कुछ भी नहीं था एंकिलोजिंग के लिए, कुछ नहीं। इतना ही दो चीज था, इसी में कुछ करो, एडजस्ट करो, सेटल करो। उसके बाद बहुत सारे इफेक्टिव मेडिसिन आ गए बायोलॉजिक्स करके, जो बहुत ही इफेक्टिव है। काफी सारे बायोलॉजिक्स अवेलेबल है जिनसे ये अच्छा हो सकता है। एंड थर्डली रिसेंट टाइम में और एक गोली भी आई है टोफासेट, वो भी बहुत इफेक्टिव है। तो सबसे पहले एनएसएआईडीज या एंटी इंफ्लेमेटरी बोलते हैं हम लोग, ये मेडिसिन इसमें इफेक्टिव है। आप आपको ऑब्वियसली ऐसे लगता रहेगा कि पेन किलर क्या है, वो तो नहीं खा सकते लंबा टाइम तक, उससे क्या होगा, उससे तो सिर्फ पेन चला जाएगा, वो थोड़ी अच्छा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में काफी बार अर्ली स्टेज में सिर्फ पेन किलर से, पेन किलर की अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है। एक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है जो पेन कम करती है, एक एंटी पायरेटिक है जो बुखार कम करती है, जिसके लिए क्रोसिन वगैरह लिया जाता है, और तीसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो एक्चुअली इन्फ्लेमेशन कम करती है। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हम इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, सिर्फ एनाल्जेसिक नहीं। तो अर्ली एंकिलोजिंग में काफी बार सिर्फ पेन किलर लेकर, या एनएसएआईडी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करो तो वो लेकर भी काफी बार ये अर्ली स्टेज में उसी से पूरा पूरा कंट्रोल में आ जाता है। तो किसी ने अगर पेन किलर दी आपको, रोमेटोलॉजिस्ट ने, तो ऐसे मत सोचना कि क्या फायदा उनके पास जाके दो पेन किलर लिख के दी मुझे, और नहीं, उसके पीछे काफी साइंस है। अगर समझो आपको है तकलीफ, लेकिन अगर थोड़े दिन पेन किलर एंटी इंफ्लेमेटरी खाकर अगर सब कुछ अगर पूरा प्रॉपरली कंट्रोल में होता है तो व्हाई नॉट। अगर उससे नहीं कंट्रोल में होता है तो डेफिनेटली टोफासिटनिब करके अभी जो नई गोली मैंने बोली वो डेफिनेटली है। वो नहीं तो बायोलॉजिक्स करके मल्टीपल इंजेक्शंस अवेलेबल है। तो ये सब अगर कंसिडर करेंगे तो इसको डेफिनेटली इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। जो सर ने कहा, ये सवाल मैं आई कैन से फॉर ऑल रूमेटोलॉजिस्ट कि ये हमारे पास आने वाला वन ऑफ द कॉमन सवाल है कि क्या आप हमें पेन किलर दे रहे हो। जैसे सर ने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से कहा, हम आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। हर पेन किलर एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं होता। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है उसका सेफ्टी डेटा
अप टू 2 years दिखाया जा चुका है. सो इट इज नॉट दैट आपकी किडनी फेल हो जाएगी या कुछ हो जाएगा. वी आर ऑल्सो कंसर्न एंड दिस इज गिवन इन द राइट मैनर. अगर सही तरीके से सही डोज में एंटी इंफ्लेमेटरी दिया गया, इट माइट स्पेयर यू आगे आने वाला जो डैमेज है. एंड ये एमआरआई में भी चेंजेस दिखाता है, करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग, कि एमआरआई में भी इन्फ्लेमेशन विद द एंटी इंफ्लेमेटरी, जिसे लोग पेन किलर सोच रहे हैं, वो एक्चुअली आपके एमआरआई के इंफ्लेमेटरी बर्डन को भी कम करके दिखा सकता है. सो सर एक क्वेश्चन जो बहुत बार हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजिक्स. सो वी डू सी कि कुछ पेशेंट्स एनसेड से, सल्फासालाजिन से, टोफासिलिन से ठीक हो रहे हैं, बट देयर आर पेशेंट जो ये ले चुके हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम पीपल, और वहां पर डिस्कशन आता है बायोलॉजिक्स का. जो लोग जानते हैं इसके बारे में, बायोलॉजिक्स इंजेक्शंस होते हैं और ये एक्सपेंसिव थेरेपी भी है. इन योर प्रैक्टिस सर, दिस इज अ क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत बार सवाल लोगों के मन में रहता है. इतना खर्चा हम करेंगे फॉर टेकिंग मंथली थेरेपी ऑफ बायोलॉजिक्स, जो भी अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है, कॉस्ट अवेलेबल है, इज इट वर्थ इट? क्या इससे सच में हमें फायदा होगा? व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? नहीं, डेफिनेटली बायोलॉजिक्स आर वेरी इफेक्टिव थेरेपीज. तो बिलीव मी, वो बहुत इफेक्टिव है और उससे पूरा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रेमिशन में डेफिनेटली आ सकता है. सो खर्चा कर रहे वो ऑब्वियसली ठीक बराबर बात है. जो बायोलॉजिक्स की कॉस्ट थी समझो 10 साल पहले, उसके हिसाब से तो आज उसकी कॉस्ट काफी कम हो गई है. बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने अभी बायोलॉजिक्स बनाने चालू किए हैं. तो कॉस्ट वाइज डेफिनेटली इट हैज कम डाउन. जो मैं रेसिडेंट था, जब मैं केईएम में था, तब जो कॉस्ट थी उसके हिसाब से आज कॉस्ट काफी कम है. एंड दे आर वेरी 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 इफेक्टिव मेडिसिन. तो अगर रूमेटोलॉजिस्ट ने आपको बोला है तो आई थिंक विदाउट हेजिटेशन यू गो अहेड विद द थेरेपी. Right. And as sir said, these are not new treatments, honestly. ऐसा नहीं है कि biologics कोई कल आई हुई दवाई है. In fact, tofasuline फिर भी नहीं है. But biologics have been there since the year 2000 and before. And India में, if I'm not wrong, around 2003 या 4 के आसपास इंडिया में biologics आ चुके थे. And they have been, cost बहुत कम हो चुकी है. And those of you who have been recommended by your rheumatologist under their care, please go ahead. सर, क्या इसमें मेडिसिन के अलावा लाइफस्टाइल का रोल क्या है? क्या स्मोकिंग, क्या एक्सरसाइज, क्या डाइट, इन सब में व्हाट आर योर इनसाइट्स? हाउ डू यू फील, व्हाट शुड बी एडवाइस? डेफिनेटली, इनफैक्ट नॉट जस्ट एंकिलोजिंग, रूमेटोलॉजी एज अ होल, इसमें अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन, मेडिकेशन तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, उसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अदर थिंग्स डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कहे तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरसाइज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ थेरेपी. तो जितनी मेडिसिन इफेक्टिव है, ऑलमोस्ट उतना ही इफेक्टिव एक्सरसाइज भी है. एक्सरसाइज से क्या क्या होता है? एक, आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होती है. जो पोस्चर, हंच बैक या झुका हुआ पोस्चर एंकिलोजिंग में होता है, ध्यान नहीं देंगे तो वो डेफिनेटली अवॉइड होने में हेल्प होता है. सेकंड, जो बैक का ओवरऑल पेन है वो कम होने में हेल्प होता है. एंड अगर हम लोग पेशेंट्स का डेटा या हिस्टोरिकल जो देखें, तो काफी सारे पेशेंट्स में प्योरली एनएसएआईडीज, जो पेन किलर अभी थोड़ी देर पहले बात की, और एक्सरसाइज, ये दोनों प्रॉपर करे तो काफी सारे पेशेंट्स ये दोनों से ही पूरी पूरी तरह से रेमिशन में जा सकते हैं. तो एक्सरसाइज एंड एन इंटीग्रल पार्ट. प्रॉपरली फिजियोथेरेपिस्ट से सीखना है, सिर्फ यूट्यूब पे देख के सीखा, इसको मिले उसको मिले उसका देख के किया, वो नहीं. प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके सीख के करना है. डेली करना है, 2 बार कर सको, नथिंग लाइक इट, बट लेट्स बी रियलिस्टिक. एटलीस्ट वंस अ डे तो डेफिनेटली प्लान करो. रोज का प्लान करोगे तो शायद हफ्ते में 5 दिन 6 दिन हो जाएगा, तो रोज का तो डेफिनेटली प्लान करो. तो एक्सरसाइजेस एब्सोल्यूट यस. एक्सरसाइज और क्या कर सकते हो? तो स्विमिंग भी कर सकते हो. स्विमिंग में बैक की प्रॉपर मैंने पूरी पूरी मूवमेंट्स होती है. एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज फिजियो छोड़कर स्विमिंग डेफिनेटली कर सकते हो. काफी लोग वॉक करते हैं, मुझे बोलते हैं सर मेरा 10,000 स्टेप्स रोज होता है, मेरा 12,000 होता है, मेरा 15,000 होता है. लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि देखो, फिजिक्स के पेपर के लिए पढ़ोगे और उसमें केमिस्ट्री का पढ़ के जाओगे तो फिजिक्स में तो मार्क्स नहीं आएंगे. तो वॉकिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उससे बैक का बहुत फायदा नहीं होता है. तो वॉकिंग करो, नो डाउट इट इज गुड, लेकिन एंकीलोजिंग के लिए सिर्फ वॉक करके फायदा नहीं होगा. तो एंकीलोजिंग के लिए स्पेसिफिक बैक एक्सरसाइजेस होने जरूरी है. वॉकिंग विल बी एन एडिशनल थिंग. सेकेंड, डाइट. लो स्टार्च डाइट करके एक टाइप का डाइट है. इसमें काफी पेशेंट्स को काफी हद तक फायदा होता है. तो अगर चाहिए तो ये आप आपके रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हो.
कुछ रूमेटोलॉजिस्ट मानते हैं कि इससे फायदा होता है, कुछ इसमें नहीं बिलीव करते। टू स्कूल्स ऑफ थॉट है। जैसे सिर्फ रूमेटोलॉजी में नहीं है, लाइफ में काफी जगह और भी चीजों में होता है कि कुछ लोग एक ही फील्ड के, कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं, कुछ नहीं। तो लो स्टार्च डाइट है ये। अगर पर्टिकुलरली आपको एंकिलोजिंग है और HLA-B27 अगर आपका पॉजिटिव है तो उसमें हेल्प कर सकता है। रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए और डायटिशियन से समझ के करना। लो स्टार्च डाइट बहुत इजी डाइट नहीं है समझने के लिए और फॉलो करने के लिए। तो वो डायटिशियन से प्रॉपरली समझ के करना, खुद से नहीं करना, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेकंड, थर्ड, स्मोकिंग। स्मोकिंग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ट्रिगर करता है और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बायोलॉजिक्स या मेडिसिन जो यूज होते हैं उसका इफेक्ट भी कम करता है। तो अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप क्या अच्छा कर सकते हो तो स्मोकिंग, जस्ट गिव अप ऑन स्मोकिंग। फ्यू अदर थिंग्स इन लाइफस्टाइल जो सिर्फ एंकिलोजिंग को नहीं तो बाकी आर्थराइटिस में भी हेल्प करती है। प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए आपकी। अगर स्लीप कम हो या प्रॉपर ना हो तो एक्स एंड पेन्स कम नहीं होते। वो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को भी बढ़ा सकते हैं, पेन को, क्योंकि नींद नहीं हुई है तो बॉडी का रिपेयर प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो रहा है। एंड सेकंड, वो एड ऑन एक्स एंड पेन्स भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल आदमी है, उसका सिर्फ यही प्रॉब्लम है, इतना बिजी होता है कि नींद ही नहीं होती है बराबर सफिशिएंट, तो उसे भी एक्स एंड पेन्स चालू होते हैं क्योंकि बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर एंकिलोजिंग है और ऐसे नींद का प्रॉब्लम है तो और भी एक्स एंड पेन्स बढ़ सकते हैं ये। एंड लास्टली, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओवर थिंकिंग अवॉइड करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। बिलीव मी, जैसे अल्टीमेटली मैन इज नॉट अ मशीन। जो दिमाग में चलेगा वो पूरे बॉडी पे रिफ्लेक्ट तो होगा। लिटरली एवरी सेल, अल्टीमेटली अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो एवरी सेल विल रिस्पॉन्ड टू इट इन अ पॉजिटिव मैनर। अगर परसिस्टेंटली नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे तो डिस्पाइट मेडिकेशन, डिस्पाइट एक्सरसाइज, एक्स एंड पेन्स चलते रहते ये रेगुलरली। सुशांत, यू कैन ऐड। हाँ, क्योंकि ये चीजें डेफिनेटली करनी है। Stress is a Yeah, stress is a big factor. I think आज के तारीख में one of the big triggers that we see is people when they go through periods of stress, uh, trigger हो जाता है. So whatever are your stressors in life, I'm adding to जो सर ने कहा कि आपके लाइफ में जो स्ट्रेस है, जॉब रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, एनी अदर स्ट्रेसेस, एग्जाम रिलेटेड हो, बहुत बार यंग लड़के होते हैं, एग्जाम का टाइम होता है. सो जो स्ट्रेस है, ऑफ कोर्स स्ट्रेस फ्री जीरो तो नहीं कर पाएंगे, बट हाउ यू टैकल योर स्ट्रेस, इसको बिल्ड इन कीजिए, बिकॉज ये लंबा रेस चलने वाला है. दिस इज अ मैराथन यू आर रनिंग. इसको 2 दिन, 2 हफ्ता, 2 महीना, 2 साल नहीं सोचना है आपको, लॉन्ग टर्म सोचना है. सो बिल्ड योर मैकेनिज्म, जिससे आप स्ट्रेस, स्लीप, एक्सरसाइज, सारी चीजें अंडर गाइडेंस फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, रोमेटोलॉजिस्ट, ये टीम वर्क है. आप उस टीम के, आपके अराउंड ये टीम बन रही है, where as sir said, we'll have to develop that holistic approach and get out of this. Sir, एक uh, I've added a new section to this. This is going to be a little fast, quick question that I'm going to ask. So एक rapid fire round करते हैं. Just to keep it a little light. And I have few questions जो आप immediately answer, जो आपके first mind में आए कर दीजिए. And just few questions होते हैं. So पहला, tell me one myth. एक ऐसी कौन सी चीज है, एक ऐसा कौन सा भ्रम है या मिथ है अबाउट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो आप बर्स्ट करना ये ठीक ही नहीं होता है, जिंदगी भर ये दर्द ऐसा ही रहेगा। बिगेस्ट मिथ, बिगेस्ट मिथ। राइट, एब्सोल्युटली. सेकंड सर, अगर कोई फर्स्ट टाइम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस होकर आपके पास आए, व्हाट इज द वन बिग एडवाइस यू विल टेल? कीप काम, ये डेफिनेटली अच्छा होगा। देयर इज डेफिनेट फुल फ्लेज ट्रीटमेंट अवेलेबल, जस्ट कीप काम, फॉलो, अच्छा हो जाएगा डेफिनेटली। यस, Absolutely. I think all of those who are listening, I mean, that's the confidence I think we're looking for. Third, sir, अगर आपके पास चॉइस दिया गया, what is that one thing you wish कि आपके पेशेंट ज्यादा करे, ज्यादा बार करे? एक ऐसी कौन सी एक्सरसाइज, चीज? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। Absolutely. And ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपको लगता है कि आपके पेशेंट ना करे या कम स्ट्रेस, से स्ट्रेस, कम करे? Absolutely. Absolutely. I think after today listening to you, definitely that must have reduced. एक फैमिली मेंबर्स को एक इम्पोर्टेंट एडवाइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बिलीव मी, किसी को दर्द है और उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब फैमिली मेंबर्स ही बिलीव नहीं करते उसमें। क्योंकि इसमें ना, इसे हम लोग काफी बार इनविजिबल पेन बोलते हैं या एक PYDLS
इसे कहा जाता है, बट यू डोंट लुक सो सिक डियर। ये दो चीजें हैं, एक इनविजिबल, क्योंकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सच में दिखता नहीं है, तो इसके लिए कभी कभी सी, मैं आपकी भी बात समझ सकता हूँ, आपने कभी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस देखा नहीं है। अगर मैंने नहीं देखा होता था, मैं जनरल पब्लिक रहता था, तो मैं भी ऐसे ही सोचता था शायद इसको क्यों पेन हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखता है, सुबह बोलता है, शाम को बोलता है, कभी भी बोलने लगता है। तो अगर है, पेन है, तो एक्सेप्ट करो, उससे रूमेटोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, डायग्नोज करो, लेकिन शक मत करते रहो। एक सेकंड, उसका सबसे बड़ा सपोर्ट या पिलर बनो स्ट्रेंथ के उसके। तो वॉट एवर इट टेक्स, आई एम देयर विथ यू। अच्छा होना है, विल एंश्योर दैट अच्छा होता है, लेकिन और नेगेटिव वाइब्स मत ऐड करना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। ये अगर आप करोगे, इफ यू स्टैंड बाय योर डियर एंड डियर वन, एंश्योर दैट उसको प्रॉपर तरीके से लेके जाते हो, तो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एंड लास्टली, डोंट फॉल प्रे टू सो मेनी अदर थिंग्स। यहाँ पे ये बाबा, वो बाबा, ये पाउडर, ये वो, किसी ने मुझे कहा रास्ते पे मिले थे, इससे अच्छा होता है। वो दो तीन चीज करोगे तो इसमें डेफिनेटली यू कैन विन दिस बैटल ऑफ एंकिलोजिंग। एंड लास्टली, और एक चीज होती है एंकिलोजिंग या ऑटोइम्यून आर्थराइटिस में, अरे कल रात को तो इतना अच्छे थे, पार्टी में जाके नाच रहे थे, आज सुबह क्या हो गया। तो इसमें काफी बार ऐसे ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू फ्लेयर किसी किसी को आता है। तो अरे सुबह तो ऑफिस में मिले थे, अच्छे खासे बोल रहे थे, अब शाम को बोल रहे हो कि मैं पार्टी में नहीं आ सकता हूँ। तो ये भी प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये फेक नहीं है, ये जेन्युइनली कभी कभी आउट ऑफ द ब्लू इसमें तीन चीजें चेंज होती है। एंड वन मोर थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर नियर एंड डियर वन इज, आप उनको, उनके फेस बिहेवियर को देखकर भी, आई एम श्योर अगर ये थोड़े दिन ज्यादा चला, शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लेकिन थोड़े दिन ज्यादा चला, तो आप उनको बोलने से पहले भी उनको सिर्फ देख के भी शायद आइडिया आपको आ जाएगा कि अरे कुछ तो प्रॉब्लम फ्लेयर अप होने लगा है। तो बी द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर योर नियर एंड डियर वन, एंड नॉट समथिंग कि ऐसे क्या वैसे क्या, डोंट गेट इनटू दैट। you he is your relative, he is your near and dear one, ensure that you are with him in this war, and believe me, you'll be able to win the war। अगर साथ में है कोई, तो डेफिनेटली अच्छे हो सकते हैं, क्यों नहीं, अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन। आई थिंक इन इंडियन कंटेक्स्ट ये बहुत मैटर करता है। वी आर अ वेरी क्लोज नेट फैमिली, तो जो फैमिली सपोर्ट है वो, एज सर हैज सेड सो ब्यूटीफुली कहा आपने सर, इट रियली प्लेज अ बिग रोल। आई वुड ऐड टू दैट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आल्सो कि बहुत बार हम देखते हैं कि जो नुकसान होता है ना, वो भी किसी नियर एंड डियर के या किसी शुभ चिंतक के कहने से ही होता है। देखिए, आप अगर फैमिली मेंबर हो और उसे सुन रहे हो, तो आपके माइंड पे बहुत सारी चीजें प्ले कर रही होंगी, जो आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, किसी को हमने देखा था, उसको देखा था, उसके साथ ऐसा हुआ, किसी ने कह दिया यहाँ जाके ट्राई करो। तो नॉलेज इज द की। देखिए, अगर आपके मन में इतना डर है, तो सोचो पेशेंट के मन में कितना होगा। बट अगर आप गलत एडवाइस को, जैसे सर ने कहा, कहीं बाबा ले के पास गए, कोई पुड़िया खा ली, कुछ, देर इज सो मच क्लियर साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल, आप उसे ना फॉलो करके किसी और चीज में जाओ, तो आपका पेशेंट की हेल्थ जो है वो सिर्फ इसी वजह से खराब हो सकती है, क्योंकि गलत मोड़ ले गया था, डायरेक्शन गलत हो गई थी। एंड वी सी दिस एवरी डे। मतलब ये पूरा रूमेटोलॉजी इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे जो आप एक्सपर्ट्स को सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, हम बात इसीलिए कर रहे हैं अपना, नो, राइट नाउ सर इज कमिंग लाइव हियर, दिस इज बिकॉज वी सी दिस, वी, हम ये रोज देख रहे हैं कि कितने लोग जो ठीक हो सकते थे सही समय पे, हम इतने कॉन्फिडेंट है कि पेशेंट ठीक हो सकते हैं, वो ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, नॉन साइंटिफिक रास्ता पकड़ रहे, और कोई ना कोई रिलेटिव वहां था, शायद पास का या कभी कभी दूर का, जो वहां उन्हें धक्का दे गया। इनफैक्ट, राइट, सो आई होप दोस हु आर लिसनिंग डोंट टेक सुशांत, जस्ट आई ऐड, स्नेहा गुआगरकर Yes, का yes, मैंने yes. मैसेज अब भी देखा, दिस हैपेंस स्पेशली इन विमेन, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, बिलीव मी, ऑल रिस्पेक्ट टू Absolutely, दैट, दिस इज डेफिनेटली वेल टेकन। absolutely, लेडीज में भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, और मेडिकल लिटरेचर भी absolutely. बोलता है कि अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो लेडीज में अंडर डायग्नोस होता है। क्योंकि हमेशा ऐसे सोचते हैं, Yeah. औरत है, वो काम चलता है, नींद नहीं करते, Mm, टेंशन लेते हैं, उसके लिए होता है, तो mm, वैसे नहीं, अगर है तो है, right. उसे डायग्नोस जरूर करना है। इनफैक्ट एक एकदम शॉर्ट स्टोरी बोलूंगा जो मैंने अभी जस्ट सुनी थी। Yes, yes, yes. एक बार Yes. एक चिड़िया उड़ रही थी, और उसके बच्चे के साथ उड़ रही थी। कुछ तो हुआ और वो Mm, बच्चा समुद्र में गिर गया, समुद्र ने उसको ले लिया।
तो चिड़िया बहुत एंग्री हो गई, उसने समुंदर को कहा मेरी चिड़िया को रिटर्न कर मुझे। तो समुंदर हंसने लग गया, मैं इतना बड़ा, तू इतनी छोटी सी, क्या मुझे बोल रही हो, मैं कहाँ से वापस दूंगा। उसने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। तो उस चिड़िया ने अपनी चोंच से पानी निकाल के बाहर फेंकना चालू किया। समुद्र हंसता रह गया कि अभी क्या, इतना बड़ा हूं, इसे कौन समझाएगा। थोड़ी देर के बाद पूरा चिड़ियों का एक झुंड आया उसके फ्रेंड्स का। तो वो बोले अरे क्या कर रही हो, समुंदर से क्या चूत से इतना छोटा छोटा पानी निकाल के बाहर फेंक रही हो, क्या कर रही हो एग्जैक्टली। तो उसने कहा मेरा बच्चा समुंदर में गिरा है, समुंदर मुझे लौटा नहीं रहा है, मैं इसका पानी निकाल के मेरे बच्चे को ढूंढ के रहूंगी। तो वो उसके फ्रेंड्स, पूरा झुंड था, 1000 2000 लोग, चिड़ियों का झुंड था, वो भी उसके ऊपर हंसने लग गए। अरे ये क्या कर रही हो, इससे तुम्हारे छोटी चूत से कौन सा पानी निकलेगा। तो उस चिड़िया ने उनको कहा सबक, मुझे एडवाइस मत दो, हेल्प करोगे तो आ जाओ। चिड़िया का माइंड, चिड़ियों के पूरे झुंड का माइंड चेंज हो गया। हेल्प तो कोई करता नहीं है, एडवाइस सब लोग देते, हेल्प नियर एंड डियर वन ही करते, चलो हम लोग भी लग जाते। तो पूरा चिड़ियों का झुंड पानी निकालने लग गया। इतने में गरुड़ आ गया। गरुड़ ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो, ऐसे छोटे छोटे चूट से इतना 2000 चिड़िया क्या कर रही है। तो चिड़ियों ने उसे वही समझाया, मेरे फ्रेंड का बच्चा सागर ने ले लिया है, सागर लौटा नहीं रहा है, हम लोग पानी निकाल रहे हैं। पहले गरुड़ भी हंसा, अरे क्या कर रहे हो, कितना बड़ा है, उसमें क्या होने वाला है, तुम्हारा कुछ नहीं होता इसमें, ऐसे कैसे होगा। तो चिड़ियों ने उसे सेम चीज कहा, एडवाइस सब लोग देते हुए मेरे नियर एंड डियर वन हो, हेल्प करो। तो गरुड़ भी काम पे लग गया। थोड़ी देर में विष्णु भगवान को जाना था कहीं, गरुड़ आ नहीं रहा था। विष्णु भगवान ने गरुड़ को पूछा अरे क्या कर रहे हो, मुझे जाना है, लेट हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लेन सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूँ भगवान की बात, लेकिन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो गरुड़ ने भगवान जी से कहा कि भगवान जी, मेरी ये चिड़िया है, बहन का बच्चा सागर ने ले लिया है, लौटा नहीं रहा है, हम लोग पानी निकाल रहे। तो स्टार्टिंग में गरुड़, वो विष्णु भगवान भी थोड़े सोच में पड़ गए, अरे क्या कर रहे हैं इन लोग। लेकिन वो बोले गरुड़ तुम क्या बोलना चाहते हो मैं समझ गया, ये लो, बच्चा मिल गया 2 मिनट में। तो ऐसे है, फालतू की एडवाइस दुनिया कोई भी दे सकता है, हेल्प बहुत कम लोग करते हैं। तो ऐसे अननेसेसरीली अगर किसको तकलीफ है तो अननेसेसरीली उसको फालतू की एडवाइस मत दो, जो जेन्युइनली मालूम है वो करो और उसको हेल्प करो। एंड जैसे मैंने अभी एग्जांपल से कहा, छोटी सी चीज जो, या रादर वो बड़ी चीज थी, छोटी चीज तो है नहीं, लेकिन जो इम्पॉसिबल लगे टू बिगिन विथ, अगर आप हेल्प कर सकते हो, वो तो इम्पॉसिबल से पॉसिबल डेफिनेटली हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। What a fantastic story, sir. And I think सुनने वालों को इशारा काफी है to understand where this is coming from. I think it's a pain that all of us as rheumatologists see every day. हम रोज ये कहानी रोज देख रहे हैं, रोज लिव थ्रू कर रहे हैं एज डॉक्टर्स। अभी अंडरस्टैंड कि हम उस पेन में नहीं है शायद, बट हम आपका दर्द देख रहे हैं रोज। और आप अगर हमारी कुर्सियों पे बैठ के इसे रोज देखोगे तो शायद आप भी यही कहोगे जो सर और मैं कहने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू कैन बी हेल्प, प्लीज बी ऑफ हेल्प, प्लीज हेल्प। बट जैसे सर ने यूज किया, मैं वही कहूंगा, फालतू की एडवाइस ना दे। सर, मैं एक सवाल लास्ट रैपिड फायर का रह गया था मेरा, जस्ट आस्क दैट क्विकली बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वुड से। अगर आप रूमेटोलॉजिस्ट नहीं होते तो क्या होते? एक तो मैं आपकी कहानी सुन चुका हूँ, आई थिंक दैट वाज वन गुड स्कोप। बट अगर आप रूमेटोलॉजिस्ट नहीं होते तो तो क्या शायद होते? मैं आईटी में होता, कुछ तो मैंने आज तक कर अच्छा। दिया होता था शायद आईटी में। आई वॉज ऑलवेज एन आईटी एस्पायरेंट। सम माय ओके। मॉम हैड सीए ब्रेस्ट। वो जब मैंने वो ओके। देखा, वो 10th में था मैं, 10th to अच्छा। 12th, जो उस टाइम में हुआ, दैट इज समथिंग दैट रेडिकली चेंज माय माइंड, एंड दैट इज हाउ मैं मेडिसिन में आया। आई वॉज नेवर अ मेडिसिन पर्सन टू बिगिन विथ। ओके। बट अगेन, जो लोग सुन रहे हैं उनके खास जानकारी के लिए, आई नो सर, सो आई कैन जस्ट से दिस कि इन आईटी जो सर कह रहे हैं, आई थिंक ही स्टिल वन ऑफ द लीडर्स इन रूमेटोलॉजी। एंड जैसे मैं कुछ समय पहले कह रहा था कि एसीआर कॉन्फ्रेंस, जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी की कॉन्फ्रेंस है, इट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर इंडिया कि वहां पे हाउ टू यूज सोशल मीडिया फॉर रूमेटोलॉजी, हाउ टू यूज ट्विटर, अब एक्स हो गया तब ट्विटर था, इसके बारे में टॉक देने के लिए गेस्ट लेक्चर वाज डॉक्टर शशांक आकेरकर सर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मुंबई, एंड इट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस सर। Right. So, sir, we are reaching towards the end of this session, but a very important thing that we have been doing, I would like to kind of listen from you. Stand for ACE.
ये जो आपकी मूवमेंट मैं कहूंगा, फाउंडेशन तो है ही, बट ये एक मूवमेंट है जिससे आप यू हैव स्टार्टेड इट एंड फाउंटेन हेडेड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. कैन यू टेल अस अबाउट व्हाट इज स्टैंड फॉर एस वन, एंड टू, हाउ कैन पीपल हु आर लिसनिंग टुडे जॉइन दैट मूवमेंट और बेनिफिट फ्रॉम दैट? डेफिनेटली स्टैंड फॉर एस फाउंडेशन एक मेरा फाउंडेशन है विच इज डेडिकेटेड टू एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. ये कहाँ से चालू हुआ, एक्चुअली कैसे चालू हुआ? एक एज रूमेटोलॉजिस्ट जब मैं पीजी में स्टूडेंट था तभी भी अभी भी ये हर बार देखने मिलता है बहुत सारे पेशेंट्स ने कि एक तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से तकलीफ है, और सेकंड काफी सारी तकलीफ प्लेन सिंपल लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हुई है. काफी मैंने यानी कहाँ से चालू हुआ तो मैंने मल्टीपल पेशेंट्स देखे, यंग पेशेंट 30-35 इयर्स के, जो प्राइम ऑफ लाइफ है, दैट इज द टाइम व्हेन यू वांट टू डू एन नंबर ऑफ थिंग्स इन लाइफ, प्रोफेशनली, सोशली, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे. और तब उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि वो चल भी नहीं सकते और उनको हिप रिप्लेसमेंट लगा. एक मेरा पेशेंट जो मुझे अभी भी याद है, वो स्टेट लेवल का जो महाराष्ट्र श्री वगैरह बोलते हैं उस टाइप का, उस लेवल का आदमी था. वो स्टेट को चैंपियन था, और एक 5 साल के ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स उसका उसे बैकएक हुआ, हिप में पेन हुआ, डायग्नोस नहीं हो सका, किसी ने टीबी सोच के टीबी करके ट्रीट किया, और वो 5 साल में ऐसा हो गया कि स्टेट चैंपियन तो छोड़ो, घर पे उठ के चल नहीं पाता था. तो ही वॉज एब्सोल्युटली बेड बाउंड. तो ये 2-3 चीजें हैं, और ये रिपीटेडली ऐसे पेशेंट्स आते थे जो जिनको 10 साल से तकलीफ है, 10 साल से डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, और फिर जाके वो ऑपरेशन करने आए तब जाके मालूम पड़ा कि ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था. तो यहाँ से ये कुछ मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर हुआ कि इट्स नॉट जस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. अगर लोगों की सफरिंग कम करनी है तो आधी सफरिंग तो मैं सिर्फ अवेयरनेस बढ़ा के कर सकता हूँ. ये आर्थराइटिस फायर जैसा है, कहीं आग लग जाती है तो मैं कितने जल्दी स्पॉट करता हूँ और कितने जल्दी डिसीजंस लेके वो फायर को बंद करता हूँ, उसी पे सब कुछ है. अगर वही फायर मैंने 5 मिनट में देखा तो मैंने सिर्फ पैर स्टैम्प करके शायद वो फायर क्लोज कर दिया. अगर और टाइम लग गया तो फायर ब्रिगेड आनी पड़ेगी, और टाइम लग गया तो शायद फायर से जब तक मैं देखूं तब तक काफी कुछ जल के खाक हुआ रहेगा. तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में काफी बार ऐसे होता है, बाय द टाइम हम लोग डायग्नोस करते हैं यंग लोगों का काफी कुछ ऑलरेडी खराब हो चुका रहता है, जैसे हिप खराब हो रहता है या बैक में बैम्बू स्पाइन होता है. एंड ये प्लेन सिंपल, इट इज सैड टू से, प्लेन सिंपल दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस इन जनरल पब्लिक, लैक ऑफ अवेयरनेस इन डॉक्टर्स एज वेल. क्योंकि डायग्नोस ही नहीं होता है टाइम पे. कुछ कोई टीबी बोल देता है, टीबी का ट्रीटमेंट बोलता है, कोई और कुछ बोलता है. तो इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर एज फाउंडेशन चालू हुआ है टू वन increase the level of awareness about ankylosing spondylitis in general public and also among doctors. तो यहाँ से ये बेसिकली जर्नी चालू हुई. फिजिकल काफी कुछ करते हैं हम लोग डॉक्टर्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए. एट द सेम टाइम इसका यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक चैनल भी है. यू एंड इसमें देर आर मोर देन 350 वीडियोज नाउ. हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है. इनफैक्ट इट हैज बीन डिजाइन्ड इन सच ए वे कि ये पूरा एनसाइक्लोपीडिया हो जाए एंकिलोजिंग के बारे में. तो अगर आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको कोई भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप वीडियो सर्च करो, आपको डेफिनेटली उससे रिलेटेड वीडियो जरूर मिलेगा. और छोटे से छोटे चीज, कैसे सोना है, कौन सा स्पोर्ट्स अच्छा है, कौन सा स्पोर्ट्स अच्छा नहीं है, कौन सा एक्सरसाइज कैसे करना है, गोली से रिलेटेड कुछ भी चीज, आपको रिब केज में पेन होता है तो क्या करना है, यानी एवरी स्मॉल थिंग, हर चीज का वीडियो, कौन सा पिलो यूज करना है, पोस्चर खराब हुआ कैसे करना है, पोस्चर बेल्ट पहनूं या नहीं पहनूं, यू नेम अ क्वेश्चन, वहां पे आपको आंसर जरूर मिलेगा. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव ट्राइड कि इससे अवेयरनेस बढ़े और जिन्हें एंकिलोजिंग है उनको जेन्युइन मेडिकल इंफॉर्मेशन मिले जिससे उनको फायदा हो सके. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव ट्राइड टू जॉइन. जस्ट एज ऑफ नाउ जस्ट ज्वाइन द यूट्यूब चैनल और फेसबुक, आपको रेगुलरली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये वीडियोस आप जो भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ग्रुप से उनमें शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका इंफॉर्मेशन मिले. दैट इज द प्रिसाइज मोटिव बिहाइंड स्टार्टिंग. एंड आई एम हैप्पी टू से
देर आर ऑलमोस्ट 50,000 सब्सक्राइबर्स नाउ, और Wow. व्यूज आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, लेकिन वी हैव बीन एबल टू टच ऑलमोस्ट 50,000 लाइव्स with the videos. So many lives. Yes. Absolutely. Fantastic. So can you tell us the name of that channel again? ये सवाल भी आया था, I was about to ask. आपके चैनल का, YouTube चैनल का नाम और फेसबुक पे क्या नाम फेसबुक से में है? यू कैन जस्ट टाइप स्टैंड फॉर एस, यू विल गेट इट। यूट्यूब पर मेरा नाम डाल दीजिए डॉक्टर आकेरकर, आपको चैनल मिल जाएगा। Fantastic. So I hope those of you listening can go and subscribe to the channel and make use of all these fantastic videos जो अलग अलग aspect of face, जो सर ने कहा ये बहुत डिटेल सवाल है जो हमें बहुत बार पूछे जाते हैं, and I can understand सर ने इतना effort डाला होगा to just get that library over there. Thank you. Hats off to that effort, sir. So sir, we are towards the end. I will ask you if you have time, can we take some Yeah, questions let's or go ahead. Let's should go we call it? ahead. No problem. We can. Okay. So जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज पुट योर क्वेश्चंस इन दैट क्वेश्चन मार्क आइकन जो है उसमें अपने सवाल डालिएगा। आई कैन सी 2 क्वेश्चंस, सो आई एम गोइंग टू टेक देम। यस, फर्स्ट सवाल, इसका जवाब सर दे चुके हैं। सवाल ये है कि इज जेंडर अ फैक्टर? यस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मीनिंग मेल्स फीमेल्स दोनों में होता है, लेकिन समहाउ ये लेडीज में थोड़ा अंडर डायग्नोस होता है फॉर द रीजंस आई जस्ट सेड। लेडीज में समहाउ एक वो मेंटल थॉट ब्लॉक होता है कि काम करते हैं, ये है वो है, उनमें तो होता ही है, बैक एक तो लेडीज में होता ही है। तो ऐसा नहीं है तो है, उसे डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। राइट। आई एम नॉट श्योर इस सवाल का एग्जैक्ट कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाए। सवाल कह रहा है कि हाउ टू रिकवर फ्रॉम डाउन हेल्थ। इफ आई एम रीफ्रेजिंग दिस, मुझे लगता है सवाल पूछना चाहता है कि फ्लेयर अप अगर हो या हेल्थ डाउन हो तो क्या करे जिससे रिकवर करें। आई एम अज्यूमिंग दैट्स द क्वेश्चन। सो फ्लेयर अप से कैसे रिकवर करें? Flare up, yeah, maybe I'll give a general answer. One, first and foremost, I'll give a checklist. One, आपका सही डायग्नोसिस हुआ है या नहीं। मुझे बैक एक है, मुझे वात है, मुझे ये है वो है, नहीं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या व्हाटएवर आर्थराइटिस है या नहीं है, दैट बिट शुड बी वेरी क्लियर। काफी लोग रहते हैं मुझे वात था, मुझे ये था, मुझे वो था, वो नहीं। आपका डायग्नोसिस इन द फर्स्ट प्लेस क्लियर है, हाँ या ना। सेकंड, अगर आर्थराइटिस है, क्या आप रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा रहे हो, हाँ या ना। क्योंकि इसके स्पेशलिस्ट कौन है, तो रूमेटोलॉजिस्ट है, उनको दिखाओ, तो ऑब्वियसली आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। रूमेटोलॉजिस्ट से एक आपको डायग्नोसिस समझाया क्या, और आपके मन में जो है वो ऑब्वियसली उनसे डिस्कस करो। अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो एक्सरसाइज आप कर रहे हो या नहीं, रूमेटोलॉजिस्ट को रेगुलर दिखा रहे हो या नहीं। ये आई थिंक दीज आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये टिक बॉक्सेस टिक कर दो, यू शुड बी ऑन द पाथ ऑफ फिटनेस। एक सुशांत, आई विल टेक क्वेश्चन, फ्यू क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में देखे थे। आई थिंक मंदार सावंत दो तीन, हाँ चैट में आई कुड सी रियल गुड क्वेश्चंस। मंदार सावंत ने कहा है कि यूजुअली इन एज पेशेंट्स स्लो डिटीरिएशन होता है, लेकिन एट सम पॉइंट डिटीरिएशन स्टॉप होता है, ऐसा है क्या? ये एक सॉर्ट ऑफ मिथ है। काफी लोगों को लगता है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक पर्टिकुलर एज के बाद बर्नआउट होता है, स्टॉप होता है। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है। अगर उसे कंट्रोल में नहीं किया गया तो फॉर वॉट एवर पीरियड ऑफ टाइम वो एक्टिव रह सकता है। सो बेस्ट थिंग इज डोंट वेट फॉर दिस। वाई वेट कि वो मैं 60 तक रुकूंगा बाद में बंद हो जाएगा, उसमें क्या मतलब है। उससे अच्छा यू एंश्योर दैट यू सी अ रूमेटोलॉजिस्ट, एंश्योर दैट इट गोज इनटू रेमिशन राइट नाउ, टुडे, टुमारो, व्हाटएवर, एट द अर्लीस्ट। डोंट वेट फॉर एज टू टेक इट्स इफेक्ट। और सेकंड, एंड एज तक सॉरी ठीक, सॉरी, गुड या गुड सॉरी गुड। आई जस्ट थिंक एज तक ठीक होते होते डैमेज हो चुका होगा, नुकसान हो चुका है। तो नुकसान होने के बाद अब आप कहेंगे कि ठीक होगा, तो इट डजंट सर्व योर और पर्पस। उनका और एक सवाल था, आई थिंक पोस्चर इज समथिंग दैट ही हैड आस्क्ड। आई थिंक सर वो सवाल हाँ पूछा हाँ है इधर। आई विल जस्ट टेक हाँ, हिज क्वेश्चन, उनका हम्म। सवाल इसमें भी आया है। सो ये है सवाल। ही इज आस्किंग कैन पोस्चर बी क्योर्ड विद व्हिच वाज डैमेज्ड ड्यू टू एज? सी एएस में क्या होता है, पोस्चर जो ऐसा होता है, बैक अपना स्ट्रेट होता है, वो स्लोली ऐसे टिल्ट होने लगता है, हंच बैक पोस्चर बोलते हैं जिसे, ऐसे आगे झुका हुआ। तो इसे दो इसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली फेज, लेट फेज। अर्ली फेज में क्या होता है, अर्ली फेज में ये पोस्चर भी रिवर्सिबल होता है। ये ऐसे क्यों झुक जाता है अर्ली फेज में, ये अपना जो वर्टिब्रे है, स्पाइन है, उसके पीछे मसल्स होते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। जब ये जॉइंट्स में स्वेलिंग आता है, बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग आता है कोई भी जॉइंट में, तो उसके जो इर्द गिर्द मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होके उस जॉइंट को प्रोटेक्ट करने लगते हैं।
तो जब बैक के जॉइंट्स में स्वेलिंग होता है तो बैक के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करके उसको सपोर्ट करने लगते हैं, सो दैट वहां का मूवमेंट कम हो जाए, पेन कम हो जाए। लेकिन उसके वजह से स्पाइन थोड़ा बेंड लगने लगता है। लेकिन ये पूरा रिवर्सिबल है अर्ली फेज में, जहां पे कोई डैमेज हुआ नहीं है स्पाइन में, इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इस फेज में प्रॉपर मेडिसिन करो, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करो, तो ये पूरा प्रॉपर नॉर्मल हो सकता है। और एम रहता है कि एक्सरसाइज और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे सीधा बैठना है, झुक के नहीं बैठना है, और वैसा सब करोगे। सोते टाइम अगर हो सके पेट पे लेटना है, करवट पे नहीं लेटना है। अगर ये सब करो तो लॉन्ग टर्म में पोस्चर खराब नहीं होने में भी हेल्प होती है। अभी अनफॉर्चुनेटली किसी किसी को बहुत समय हो गया, समझो किसी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो उसमें स्पाइन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है और उसके वजह से भी पोस्चर ऐसा बेंट हो सकता है। तो उसमें वो फुल्ली रिवर्सिबल नहीं होगा, लेकिन टू सम एक्सटेंट वो भी ठीक हो सकता है। तो यू शुड कंसल्ट योर रूमेटोलॉजिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट फॉर गेटिंग दिस पोस्चर करेक्टेड। Fantastic. Absolutely. Absolutely. Right. So, I'll take some more questions जो हमें पूछे गए हैं। ये सवाल मैं जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ, ये आप जवाब अभी अभी दे चुके हो। I'm suffering from AS with HLA-B27 positive, L4 L5 is fused and difficult to bend। तो जैसे सर ने अभी अभी कहा, meet a rheumatologist and then let the rheumatologist take a call as to what can be done about it। एक और सवाल है, आई थिंक वी कैन जस्ट शेड सम लाइट ऑन दिस। माय सर्वाइकल स्पाइन हैज बीन अफेक्टेड ड्यू टू एएस, व्हाट टू डू। ये बड़ा प्रॉब्लम है, जब एएस यहाँ तक पहुंच जाता है गर्दन की मूवमेंट रुक जाती है। सो व्हाट कैन बी द एडवाइस एट दैट टाइम? रूमेटोलॉजिस्ट को मिलो, वट एवर इन्फ्लेमेशन है एज अर्ली एज पॉसिबल उसको कंट्रोल में लेके आओ। सेकंड, फिजियो से मिलो, सो दैट एक्सरसाइज चालू होते, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। थर्डली, रूमेटोलॉजिस्ट को मिलेंगे तो एक्सरे ऑब्वियसली हो जाएगा। एक्सरे में फ्यूजन है या नहीं है, फ्यूजन का मतलब है वहां पे जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है वो, तो उससे आपको आइडिया जरूर आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड लास्टली, कुछ लाइफ इजी करने के लिए, जैसे कार में रेयर व्यू जो वीडियो कैमरा है वो डाल दो। तो ये सब चीज, पिलो में थोड़े चेंजेस कर लो, बैठते टाइम कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह, ये सब चीज कर लोगे तो इट वुड बी बेटर एज कंपेयर टू व्हाट इट इज टुडे। So for every stage, whichever stage of age that you are, your doctor can customize the treatment for your requirement. And that, of course, we can't do it online like this, but we are taking questions so that it helps everybody who's listening. Uh, एक जनरल सवाल है, आई थिंक आई जस्ट टेक दैट एंड आंसर दैट कि कैन थ्रॉपिंग लेग पेन हैपन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन? That's a very vague question, to be honest. मतलब we can't answer that question. The answer is possible, but that needs to be seen by an expert. But this is not a part of ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis, as sir ने कहा, it's predominantly involving the spine involvement, right? So those are the questions that we have, sir. I think we can wrap up with a take-home message from your side as to what you think. If I ask you what would be the final words, कि लोग जो आज सुन रहे हैं इस वीडियो को बाद में भी सुनेंगे, what is your message for patients who have ankylosing spondylitis? हारना नहीं है दोस्त, इट्स अ बैटल। एंड consider your rheumatologist as your friend, as your guide. Take advice from him, जो आपके मन में है, जो आपको आगे जाके करना है, जो आपके माइंड में प्लान्स है लाइफ के, यू डिस्कस विथ हिम। क्योंकि वो डिस्कस करेंगे तो उनको भी आइडिया आए। जैसे प्रेगनेंसी तो काफी बार डिस्कस कर लेते कि मुझे प्रेगनेंसी प्लान करना है, ये करना है, वो करना है, ऑब्वियसली। लेकिन एट द सेम टाइम, don't consider the rheumatologist as somebody who just sitting on the other side of the table and आप बोल रहे हो वो लिख रहा है, कर रहा है, नहीं। You can always make him may friend plus minus, but definitely your guide who can help you. See, he has seen, not just he knows about you, but he has seen so many people of your type. तो कहाँ धक्के लगते हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स होती है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हम लोग रोज के रोज देखते ही है। तो एक, कीप हिम एज योर गाइड। सेकंड, आपके मन में जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है, मुझे सर 2 साल में ये करना है, 1 साल में ये अचीव करना है, वट एवर, यू कैन डेफिनेटली टू टॉक टू हिम अबाउट इट एंड ही कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। तो हारना नहीं है दोस्त। एंड ये नेगेटिव लोगों के बीच में मत रहो। You are the average of 5 people around you. So same way, ensure that you have good company. If you are a near and dear one of somebody who's suffering from arthritis, you should be the pillar of strength of that person
एंड नॉट जस्ट somebody जो डिजेक्टेड उसको बार बार ये क्या है, ऐसा क्या है, वैसा कर से ताने. बिलीव मी, किसी के लिए भी दुनिया कुछ भी बोले चल जाता है, लेकिन जो पास वाला एक बार भी बोल दे तो भी बहुत तकलीफ होती है. So take care of that with the rheumatologist as your team. I am sure you'll be able to conquer any arthritis that you have. ट्रीटमेंट वाइज आज के दिन में हर चीज का बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है. इट इज वेदर यू एक्सेस इट और नॉट, हाउ इफेक्टिवली you make use of the resources of a rheumatologist that are available to you, and lastly positively how you can change your lifestyle and other things to ensure that you conquer arthritis. ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिन में. सो वेल सर, सो वेल सर. आई थिंक जो हमारे आज लिसनर्स रहे हैं इस शो को और जो आगे भी इसका रिकॉर्डिंग सुनेंगे, this is the third episode of the Health and Healing Show, and we are so privileged to have a esteemed rheumatologist and a very very proactive, I mean one of the rheumatologists जो बहुत patient oriented, patient centric काम कर रहे हैं through his Stand for AS Foundation. आज हमने उनको सुना, एंड आई होप जो लोग इसे सुन रहे थे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और बाकी रोमैटिक डिसीजेस में, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर. देयर आर ट्रीटमेंट्स, डू नॉट लूज होप. एंड इफ यू आर अ केयर गिवर, अगर आप फैमिली मेंबर है तो अपने फैमिली मेंबर्स का जिनको तकलीफ है उनके साथ खड़े रहिए. And through the platform of Rheumatology India, I hope this message reaches many people. Sir, I would like to thank you for sharing such wonderful wisdom. आपने इतना समय दिया उसके लिए thank you. And for all of those who joined in live, have a wonderful evening. Goodbye and Thank you very much. Pleasure to be on your platform. Thank you. thank you, sir.